Evening. Yeah, good evening, guys. Shall we start, right? So, the topic is artificial intelligence and machine learning. On the right screen, you can see there's a presentation, right? So, we will start the session. So, the first thing, guys, you need to understand कि AI ML से क्या relation है? What will be the relation between AI and ML? The term is same? No. The term is different? Yes. The term is different. The meaning of both the term is different? Yeah, exactly. It is like chocolate with a wrapper. Same. ठीक है. A man with a dress. सी गाइस क्या होता है ना ए आई एम एल का जो टर्म है वो अपन को पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा देन वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द डेप्थ. इफ यू अंडरस्टैंड अबाउट ए आई एम एल जो भी वो चार कैरेक्टर है ए आई एम एल इफ यू अंडरस्टैंड परफेक्टली you can understand the remaining stuff automatically in a good clarification. ठीक है. So let's start with the session. Just a minute. Guys, on the right side you can see this is the right side, right? यहाँ पे आप देख सकते हो guys. AI. Coming to AI, it defines that it is the goal. If I want to try to explain you in one word, so it's a goal, a target. So let's take a small example. My target is today I want to go to college. Okay, today I want to go to college. So now, guys, leave it about college. Today I want to go for study. Today I want to go for study. So what is happening here now? Two terms are there: machine learning and deep learning, right? So coming to AI is my target. What is my target? What is my goal? Goal is to do study. ML. ML is saying learn from experience. So guys, learn from experience क्या होता है? Learn from experience अपन ये बोल सकते हैं ना, like अगर मैं एक टास्क दे रहा हूँ कि घर जाके पढ़ाई करके अच्छे से आओ. If you are a small kids, you will learn everything which is going to depends on your parents because they are your experience. They are the experienced person. They are going to teach you, right? This is what ML is trying to explain you. In ML, we are trying to learn to make machine to learn from experience. Now coming to the deep learning, here it is not like that. Not like he learn from experience. Here the person will going to learn from their own, like a human brain, right? Like I am the person. If some person is giving me the question, hi Pratik, this is your task. You need to perform it. Can I fulfill the task? Yes. How? Because already in my brain I store lot of stuffs. Yes. Through these stuffs, I can give certain response, right? Maybe it will be a wrong or not. I don't know. It's later on we can discuss, right? But currently, we are talking about what? We are talking about certain stuffs, right? And the stuffs I was giving to the person that is deep learning. I'm the deep learning. Small kids. छोटे बच्चे जो रहते हैं ना they are like machinery. Why they are machine learning? If they want to learn A for apple also they need certain experience. That experience is given by their parents. But coming to us, we know that A for apple and also we know that A for Argentina, A for aeroplane, A for lot of things are there. But students are not. Sorry, kids are don't know about everything. They know only A for apple because हमारी जिंदगी A for apple से start होती है, right? Got it, guys? So this is what AI, ML, and deep learning are relatable to each other. AI with ML or AI with deep learning. हाँ. So ये term काय को है? Why this term came? AI, ML, deep learning. Why it's came to our India, right? This is a major point. This is a major question. So सोचो क्यों आया होगा? शायद इसीलिए आया होगा ना कि मैन मेड पावर में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहे होंगे, राइट? वट एवर वी आर डूइंग द थिंग्स सो वी आर गेटिंग लॉट ऑफ स्ट्रगल. ठीक है, एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना है तो टू कंस्ट्रक्ट वन बिल्डिंग वी आर using 100 workers. Out of 100 workers 20 workers are getting die, right? Due to certain reasons. Hmm? Whatever the physical works are there, uh, people are getting lot of stuffs, they are getting lot of disease, right? To reduce all this problem, we can say AI will going to resolve this problem. Exactly, the AI will going to resolve your problem. Second thing, you know guys, एक सबसे बड़ा trauma क्या है? We are saying कि AI is going to replace your job.
Second thing we are saying ki AI is going to do the task better than human being. If we are taking whatever, AI can take the same thing to finish at least 10 minutes, right? So guys, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा ही होता है. Now लेट मी क्लैरिफाई यू. एक मशीन को बनाने के पीछे ह्यूमन बीइंग का बहुत बड़ा हाथ है, राइट? सो इफ मशीन इज डूइंग सर्टेन टास्क इन 10 minutes, दैट इज ऑल्सो ड्यू टू ह्यूमन बीइंग ओनली. We are the person, we are the giving the information, we are giving the data. Machine is understanding the data, machine is working on that particular data, and machine is going to give you the output based on the data, guys. राइट? एक लाइफ साइकिल है मशीन का. पहले डेटा को इंपोर्ट करेगा, स्टोर करेगा, उसको फिर वो क्लीन करेगा, क्लीन करके वो डेटा को वो प्रॉपर मैनिपुलेट करेगा कि सही है नहीं है, ट्रेनिंग में डालेगा. हाँ, दिस ऑल आर द डेटा, वी आर गोइंग टू ट्रेन द डेटा. वंस द ट्रेनिंग हैज बीन डन, अगेन मशीन इज गोइंग टू कंपेयर द ट्रेनिंग डेटा विद द टेस्टिंग डेटा. समझ गए? टेस्टिंग डेटा में जो भी डेटा रहेगा उसको मिसमैच करेगा. if the data is getting matching, if data is getting 100% accurate answer, what we can say, prediction 100% आप पे जा रहा है, so machine is giving you the perfect accuracy, right? ये सारी चीज़ें चलती रहती है मशीन की दुनिया में. इसका अच्छे से अपन प्रैक्टिकल में आपको दिखाऊंगा, स्ट्रक्चर बेस्ड पे मैं आपको बना के दिखाऊंगा. डोंट वरी अबाउट इट. चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं. सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये स्ट्रक्चर देख लीजिए आप. सो वी विल डू वन थिंग गाइस, मैं आपको स्क्रीन बड़ा करके दिखाता हूँ, राइट? सो लेट्स गो विथ दिस वन. Just a minute. So now what is happening? AI is only three term, guys. Within 3 lines, I can define you what is an AI. The first one is development of a machine. Here you can see development of a machine, which means we are going to deploy or develop one machine. Why we are developing a machine? To perform several tasks. Here, the third one, we are developing a machine. Why we are developing? To perform any several tasks. And to perform a task that is 100% sure, we require certain knowledge, informations. Without any informations, without any data, it is not possible to perform a task. So in the structure here, you can see, guys, the person is creating a chatbot using computer programs and algorithms with the help of two terms, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और एक एल्गोरिथम. ये दोनों की चीज के चलते मशीन क्या कर रहा है, वो एक चैटबॉट बनाने की कोशिश कर रहा है, राइट? नाउ इन द सेकंड वन, व्हाट ह्यूमन बीइंग विल गोइंग टू डू? मशीन का टारगेट है एक चैटबॉट बनाना, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और एल्गोरिथम को यूज करके अपन को चैटबॉट बनाना है, वो मशीन का काम है. लेकिन ह्यूमन बीइंग का काम क्या है? ह्यूमन बीइंग इज गोइंग टू फीड द मशीन विद डेटा. मशीन क्या करेगा? वो डेटा को फीड करेगा. डेटा को फीड करेगा. फिट करने के बाद हमारा जो थर्ड स्टेप रहेगा वो ये होगा कि आफ्टर लॉन्ग टाइम चैटबॉट इज गोइंग टू क्रिएटेड फॉर शॉपिंग, सजेशन, फाइंडिंग लोकेशन, डेटा एनालिसिस, आंसर द क्वेश्चंस, लैंग्वेज ट्रांसलेशन. फॉर दिस ऑल द थिंग्स वी आर गोइंग टू क्रिएटेड द चैटबॉट. नाउ कम्स विद अ प्रैक्टिकल वन. तो स्टेप वन में क्या था? अनर डेवलपमेंट ऑफ ए मशीन. मैंने एक मशीन बनाने की कोशिश की है, ये चैटबॉट में बना रहा हूँ, राइट? एक चैटबॉट बनाने के लिए क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है? दिस इज अ फर्स्ट स्टेप. चैटबॉट बनाना है मेरे को, राइट? सो नाउ कमिंग टू क्रिएटिंग ए चैटबॉट, यू नो दैट इट रिक्वायर्स सर्टेन डेटा, है ना? यस और नो? सो मशीन में अपन क्या करेंगे? डेटा को फिट करेंगे. डेटा को अपन फिट करेंगे. दिस डेटा इज गोइंग टू कलेक्टिंग बाय द ह्यूमन नॉलेज. ओके. सो सेकेंड लाइन में ये था कि वुमेन नॉलेज की बहुत ज़रूरी है, राइट? विदाउट वुमेन नॉलेज वी आर डूइंग नथिंग. सो several different types of data are there. Maybe image, maybe text, maybe any Google Maps, any quizzes, several, so many different kinds of data are there. We are going to feed all the information to the chatbot. Got it? Once it has been done, the second step has been done, we will go with the third one. The third one is all about very simple. मेरा चैटबॉट रेडी है.
इसको मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, फ्लिपकार्ट में यूज़ कर रहा हूँ। फ्लिपकार्ट आई आई वॉज यूजिंग इन फ्लिपकार्ट AI असिस्टेंट। ठीक है, AI असिस्टेंट से बात करने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, राइट। हो गया आपका। नेक्स्ट आपका क्या हो गया था, दिस वन, लैंग्वेज ट्रांसलेट करने के लिए, किसी भी क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए, क्वेश्चंस को आंसर देने के लिए, ठीक है। लैंग्वेज को ट्रांसफ़र करने के लिए फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, गॉट इट। सो लॉट ऑफ स्टफ्स आर हैपनिंग इन दिस सिनेरियो गाइस। एक चैटबॉट बनाने के लिए अपन को डेटा की बहुत ज़रूरी है, ठीक है, राइट। नाउ अब इसको अपन एक रियल टाइम सिनेरियो से अपन समझेंगे। दिस इज अ बॉय, सपोज दिस इज अ बॉय गाइस। राइट नाउ दिस बॉय was hungry, he was so much hungry. His task is eating right now. What is the task here? Eating. So this one, perform several tasks. Third one, right? This is the third step. Third step is what? Task. First step is we deploy the machine, right? हमने एक मशीन बनाया जो मशीन को जब भी टास्क करना रहेगा तब वो डेटा को इंपोर्ट करके टास्क फुलफिल करेगा, राइट। सो दिस पर्टिकुलर पर्सन इज द फर्स्ट स्टेप, we deploy the machine, right? Now we need to feed certain food. Food is given by human being, right? So we are giving certain knowledge, or we can say we are giving certain data, right? So this data, this knowledge we are feeding to the machine as a food. Machine is eating and machine is performing the task. Got it guys? सो ये होता है रियल टाइम सिनेरियो से आप समझ सकते हो कि क्या चल रही है हमारे लाइफ में एआई के बारे में। Got it, guys? So this is all about the structure between these three things, right? Now we will jump into the next one. The- मैंने आपको तीन चीज बोला था। ML is what? Learn from data, right? So यहाँ पे क्या हो रहा है? What is the goal of AI? How can I make the bricks? The person was thinking कि मैं ये bricks को कैसे बनाऊं? That is a target. That is a goal of AI. AI is always about to think how to do the work. Now ML is going to say, I I am the person, I am the tool, I am the procedure. I will going to provide you the data, and within that data, I will going to experience the data and I will going to feed it into the machine. मशीन लर्निंग यही बोल रहा है कि मैं डेटा को लेके आऊँगा, दूसरे दूसरे सोर्स से मैं कलेक्ट करूँगा और उसको कलेक्ट करने के बाद मैं अपने एक्सपीरियंस से मैं उसको अंडरस्टैंड करके मैं तुमको फिट करके दे दूँगा। This is the role of ML. Now coming to the deep learning is saying that no need of any experience. The person can learn from their own. The person can understand the scenario by their own because lot of stuffs already the person learned from past experience. ठीक है, तो बहुत सिंपल है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अभी जैसे मान लो अपन ना मशीन लर्निंग के बारे में अगर समझे तो जो एक्सपीरियंस की जो मैं बात कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस अपन को देना रहता है, वी नीड टू गिव टू द मशीन। बट कमिंग टू डीप लर्निंग, दिस एक्सपीरियंस द पर्सन इज हैविंग ऑलरेडी। ठीक है, इसको अपन बोल देंगे पास्ट एक्सपीरियंस, प्रेजेंट, बिकॉज वी नीड एक्सपीरियंस, वी आर getting the experience to the machine. Already my machine was having the experience. This is the difference between machine learning and deep learning is. इसको और डेप्थ में अपन आराम से पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, राइट। नाउ वी नीड टू जंप इनटू अनदर वन। कैसा कनेक्शन है ह्यूमन बीइंग और मशीन के बीच में? सो द कनेक्शन बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड मशीन्स, वी आर हैविंग टोटल 6 स्टेप्स गाइस। सो द फर्स्ट वन इज ह्यूमन एक्सपर्ट। द ह्यूमन एक्सपर्ट का मतलब क्या है? वो एक ऐसा बंदा जो ऑलरेडी नॉलेज लेके रख चुका है, जिसके पास ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस है, ठीक है। द पर्सन हु इज हैविंग ऑलरेडी एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। नॉलेज इंजीनियर क्या होता है? द नॉलेज इंजीनियरिंग इज सेइंग दैट जो भी नॉलेज है पर्सन का, सपोज देयर इज एक्स पर्सन हु इज हैविंग ऑलरेडी सो मेनी नॉलेज, वाई पर्सन इज ऑल अबाउट नॉलेज एक्सपीरियंस। वाई पर्सन क्या करेगा? एक्स पर्सन का नॉलेज को लेगा, फिट करेगा और सिस्टम में उसको डाल देगा। और नॉलेज बेस क्या करता है? वो एक स्टोरेज है जहाँ पे अपन पूरा इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। सो अभी तीन चीज़ों के बारे में अपन पहले समझते हैं।
ये एक है हमारा ह्यूमन एक्सपर्ट। ठीक है, ये बंदा क्या कर रहा है, जो ऑलरेडी नॉलेज के साथ है। ठीक है, सेकंड है हमारा नॉलेज एक्सपर्ट। थर्ड वन इज नॉलेज बेस्ड। नॉलेज एक्सपर्ट इज सेइंग दैट जो भी नॉलेज इस बंदे के पास है वो बंदा इसको दे देगा, और वी कैन से दिस पर्सन इज गोइंग टू टेक द नॉलेज फ्रॉम दिस पर्सन। ओके, इट इज अ गिविंग टेकिंग प्रोसेस। लेने के बाद उस पर्टिकुलर नॉलेज के ऊपर ये काम करेगा और वो कर देगा नॉलेज बेस पे फीड। व्हाट डू यू मीन बाय नॉलेज बेस? इट इज लाइक द डेटा बेस वेयर वी कैन स्टोर ऑल द इंफॉर्मेशन। नॉलेज बेस इज नथिंग बट इट इज लाइक ए स्टोरेज। यहाँ पे अपन डेटा को स्टोर करते हैं बेस। So whatever the information he was getting, he was giving to the knowledge base. Now come to the fourth one, inference engine. I use the rules and fact to find the answer. अब क्या होगा ना, इन्फ्रेंस इंजन ये बोल रहा है कि मैं कुछ रूल्स लगा लेता हूँ। ठीक है, वो रूल्स के अनुसार जो भी क्वेश्चन रहेगा उसके आंसर को मैं रूल्स के यूज करके मैं फुलफिल कर दूंगा। वट एवर द टास्क, वट एवर द गोल इज देयर, to fulfill this goal, we require certain rules that is done by reference engine. User interface मालूम है user the person who's asking the question and getting the answer. User interface is nothing but it is like the screen. Okay, very simple है। एक रियल टाइम एग्जांपल अपन ले लेते हैं। ठीक है, ह्यूमन एक्सपर्ट स्टार्ट होगा, ह्यूमन एक्सपर्ट नहीं स्टार्ट होगा एक यूजर से। आई एम द पर्सन आई वाज आस्किंग सर्टेन क्वेश्चन। ठीक है, अब आस्किंग सर्टेन क्वेश्चन में अगर कुछ क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है, एज अ पेशेंट मैंने डॉक्टर को पूछा कि मेरे को ये सारे डिसीज है, व्हाट टाइप ऑफ मेडिसिन आई रिक्वायर। सो डॉक्टर क्या करेगा, मेरे रिक्वायरमेंट के बेसिस में वो मेरे को मेडिसिन देगा। राइट, गॉट इट? यस। अब आ जाता है अपन नॉलेज इंजीनियर। नॉलेज इंजीनियर क्या करेगा, वो एक प्रोग्रामर है जो वो पूरा डॉक्टर का इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा, मेडिसिन का इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा, और जो भी पेशेंट है, जो भी यूज़र है, उसके बारे में भी वो इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा। स्टोर करने के बाद वो डेटाबेस में उसको फिक्स्ड कर देगा। ठीक है, नाउ कमिंग टू नॉलेज इंजीनियर, वो स्टोर नहीं करेगा, वो पर्टिकुलर यूजर्स और डॉक्टर से वो इन्फॉर्मेशन गैदर करके वो क्या करेगा, वो मशीन में स्टोर कर देगा। दैट मशीन इज नॉलेज बेस्ड। इन्फ्रेंस इंजन क्या करेगा, इट चेक्स सिम्टम्स एंड प्रेडिक्ट द डिसीज। वो सिम्टम्स के बारे में अंडरस्टैंड करेगा और प्रेडिक्ट करेगा कौन सा डिसीज पर्टिकुलर पेशेंट को हुआ है। यूजर इंटरफेस, यू नो दैट अ चैटबॉट और वी कैन से हॉस्पिटल सॉफ्टवेयर, कोई भी स्क्रीन हो जाता है। राइट, सिंपल है, बहुत सिंपल फंड है गाइस। तो यहाँ पे आप देख लो, एक यूज़र है हमारा और ये हमारा डॉक्टर है। ठीक है, ये डॉक्टर है, ये यूज़र है। अभी इसको कुछ फीवर आ गया है तो ये डायरेक्टली कनेक्ट कर लिया, अगर मान लो सपोज डॉक्टर से। सो इसने रिक्वेस्ट किया, इससे इसको रेस्पॉन्ड कर दिया, तो भी फीवर ठीक नहीं हुआ। अब आता हमारा थर्ड पर्सन जिसको अपन बोलते हैं नॉलेज इंजीनियर। अब ये क्या करेगा ना, दिस नॉलेज इंजीनियर इज गोइंग टू टेक ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेशेंट एंड ऑल्सो फ्रॉम द डॉक्टर। वेदर कंडीशन के बारे में भी वो लेगा। ठीक है, डॉक्टर के बारे में ये लेगा कि डॉक्टर कौन है। ठीक है, एवरीथिंग, पेशेंट को डिजीज क्या हुआ, व्हाट एवर द मेडिसिन दिस डॉक्टर इज प्रोवाइडिंग टू द पर्सन एंड व्हाट आर द टोटल मेडिसिन आर देयर। 100% मेडिसिन में 60% अगर ये डॉक्टर यूज कर रहा है, व्हाट अबाउट द रिमेनिंग 40, दिस 40% इज ऑल्सो गोइंग टू स्टोर टू दिस नॉलेज इंजीनियर। ठीक है, दिख रहा है ये नॉलेज इंजीनियर, वो क्या करेगा, वो पूरा इन्फॉर्मेशन ले लेगा। लेने के बाद ये क्या करेगा, नॉलेज बेस में स्टोर करेगा। नॉलेज बेस इज नथिंग बट इट इज लाइक द डेटाबेस, वहाँ पे आपके पूरे इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी गाइस। स्टोर होने के बाद आता हमारा रेफरेंस इंजन। रेफरेंस इन्फ्रेंस इन्फ्रेंस इंजन, सॉरी, इन्फ्रेंस इंजन क्या करेगा, सपोज इन्फ्रेंस इंजन को ये आइडिया हो गया है कि इस पेशेंट को एक डिसीज हुआ है। अब उस डिसीज को ये प्रेडिक्ट करेगा, और प्रेडिक्ट करने के बाद वो मेडिसिन को रिकमेंड कर देगा। फर्स्ट इट विल गोइंग टू प्रेडिक्ट द डिसीज, कौन सा डिसीज हुआ है, और उस मेडिसिन को, सॉरी, उस डिसीज को प्रेडिक्ट करने के बाद मशीन इज गोइंग टू टेक द मेडिसिन फ्रॉम द डॉक्टर और रिकमेंड करेगा डॉक्टर को मेडिसिन। गॉट इट? आफ्टर डन विद दिस, रिमेनिंग टू things are user interface and user. This is a
terms is happening in between doctor or sorry human being or machines, right? So this is things is happening, guys. We are having total three different types of AI basically, right? तो पहले अपन इधर आ जाते हैं guys. So whatever the three different types of AI are there, just a minute. So whatever the three different types of AI we are having, the first one is very clear. It is a narrow AI. So let me tell you what you mean by narrow AI. Narrow AI is the AI which performs only single task. Single task बोले तो for example Siri. अगर मैं बोल रहा हूँ Siri को, hey Siri please play a music. So I was saying I was giving some assistant to the AI, right? And only single assistant I was giving the play the music and I was assigning the music name also. ओके. सो सपोज मैंने बोला कि प्लीज सिद्धू मूसेवाला का ये गाना लगा दो. सो मशीन क्या करेगा? मशीन इज गोइंग टू अंडरस्टैंड माई इंफॉर्मेशन, वॉइस. मशीन मेरे वॉइस को अंडरस्टैंड करेगा और वो रेस्पॉन्स करेगा. जनरल एआई इज व्हाट विच परफॉर्म मल्टीपल टास्क. सो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग यू कैन गो विद द एग्जाम्पल गाइज. सो यहाँ पे देख सकते हो एग्जाम्पल, आ रोबोट वर्कर दैट कुड लर्न्स टू बी अ प्लम्बर देन स्विच टू बीइंग ए डॉक्टर देन अ टीचर. सही है ना? एनी टास्क, एक प्लम्बर को अपन बोल सकते हैं कि वो टीचर भी बन सकते हैं, राइट? मल्टीपल टास्क गाइस, अ मशीन ही परफॉर्म मल्टीपल टास्क. लाइक अभी ऐसा अपन सिंपल ले लिए कि अगर मैं बीकॉम का स्टूडेंट हूँ और मैं आईटी में जॉब कर रहा हूँ, थोड़ी सर्टेन डिफरेंट थिंग्स, राइट? मैंने पूरा अपना लाइफ, मैंने पूरा डिग्री तक मैंने बीकॉम में निकाला, बट आफ्टर गेटिंग ए जॉब आई वाज वर्किंग एज अ डेवऑप्स इंजीनियर. गॉट इट? So there is certain link is there. There is no link. Just I can say people are saying, yeah, I was doing multiple tasking, right? Yes, that is a perfect example. The third one is super intelligence. Super intelligence is what, like अपन एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते. सपोज दिस पेन इज विथ मी, दिस पेन इज विथ मी, ओके. अभी मैं ये सोच सकता हूँ कि इस पेन को मैं कुछ और भी कर सकता हूँ. लाइक इफ आई विल टिल्ट लाइक दिस विल गोइंग टू बी ब्रेक, राइट? इफ आफ्टर ब्रेकिंग दिस पेन there is no use of this pen, right? So like that machine is also the same thing, guys. उसको एक ऐसा, सी, कमिंग टू द सुपर इंटेलिजेंस इज लाइक, इट्स सिंपल. अपन ये बोल सकते हैं ना, जो चीज कोई नहीं कर सकता वो मशीन कर सकता है. सिंपल वे, जो चीज कोई नहीं कर सकता वो मशीन कर सकता है. अभी ये पेन है, मैं तोड़ दिया इसको, अपन यूज नहीं कर सकते कुछ, बट मशीन कैन थिंक अबाउट इट कि टुडे पेन का भी वी कैन डू सर्टेन थिंग्स विद दैट. गॉट इट? सो लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट पॉइंट. इट्स क्लियर गाइस, वेरी क्लियर. ठीक है. सो फ्रॉम हियर वी विल गोइंग टू लर्न टुमारो. ठीक है. मशीन लर्निंग के बारे में अपन और अच्छे से कल पढ़ेंगे गाइस. मैं इतना ही कहूँगा कि सी, बार बार यही कहूँगा मैं कि जो भी टर्म आप यू आर गोइंग टू लर्न सम टर्म्स, राइट? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द टर्म्स. दैट इज मेजर इम्पॉर्टेंट. ओके. दिस इज अ topic, last topic for the today's session. So here, small assessment for you. So the task one, you need to think about AI, what type of AI. Second one, you need to decide what type of AI actually it is. So the first one is what? First one is Meta. Second one is Alexa. Third one is Siri. Fourth one is Netflix. Fifth one is Google Map. Sixth one is face recognitions. Now, guys, what is happening in this all the six AI tool? Let me tell you once. Just a minute, guys. Let me adjust my screen. So now you can get the clarification. यहाँ पे क्या हो रहा है ना? So total I was having six different types of AI. Yeah, maybe I can say out of this six different type of AI, some of examples are same. So the first one is Meta AI. Second one is Alexa. Now these two are same? No. Second and third one is same? Yes. Second and third one is same because they both are voice process. Alexa and Siri. Alexa and Siri, why they both are same? Because we are giving some instructions and machine is giving us some output.
in the based on sorry in the based on voice. So now the first one is Meta AI. Now coming to Meta AI, Alexa is all about voice process. ठीक है, हमने उसको एक टास्क दिया कि प्लीज प्ले द म्यूजिक, सो म्यूजिक प्ले कर रहा है. बट कमिंग टू द Meta AI, it is similar type of ChatGPT, Gemini, Perplexity, right? Grok AI. So many AI tools जहाँ पे अपन टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देंगे तो रेस्पॉन्स आएगा, वॉइस भी देंगे तो रेस्पॉन्स आएगा. वी कैन गो फॉर द इमेज. कैन यू आस्क एनी इमेज टू द Alexa or Siri? No. No. Can I say Alexa and Siri are narrow AI, single task? Yes. Meta AI, maybe multiple tasks. I can go for the text information. I can ask any image information. Got it? Netflix. Netflix is a certain different type of AI. It is also comes under narrow. Why? Because it performs only one task. What is that? Recommend. If you need something, Netflix is going to recommend you something, right? If you are need for some movie, you need to just search in the search bar. Machine is going to recommend you this is a movie. Google Maps, multiple tasks. It will going to assist you the location and also assist you the Google Assistant. This is a small girl. Some voice will going to assist you. Take left, take right, go straight, take U-turn like that. So the multiple task is happening in the Google Maps. Face recognition. What do you mean by face recognition? Our phone face unlock. We need to unlock our face. Sorry, we need to unlock our phone with the help of face, right? So this is also done by AI. Now in this face unlock, what is happening? My machine is understanding my photo, my face, because before starting the face unlock, machine was taken the 3 or 4 times of my face photo to understand this is the input or whatever the output I will get, it should be matched. Got it, guys? सो नैरो एआई क्या होता है ना, जो सिंगल टास्क पे काम करता है उसी को बोलते हैं. और जनरल एआई इज लाइक मल्टीपल टास्क. जैसे मैंने बीकॉम करके इंजीनियर बन गया, मैं बीटेक पढ़ के मैं एक चाय वाला बन गया, लाइक दैट. सुपर इंटेलिजेंट क्या हो गया ना, लाइक मेरे पास है कुछ पेन हो गया, तो इस पेन को अगर मैं तोड़ दिया टुडे पेन का भी आई कैन डू समथिंग. तो दिस इज द थिंग इज हैपनिंग इन एआई टाइप्स ऑफ ए. ओके. So I hope you are all are understanding what I was trying to explain you, right? So please keep watching my videos. If you have any doubt on any topic, you can comment on the comment box. So I will go through it, and definitely I will going to create a video for that particular your doubt. And surely I was saying that I will not take any much time. You can come up with any doubt, guys. No issue. Any doubt you can come up, but should be related to AI or DevOps or AWS or Azure, or it should be related to Power BI. ठीक है? और बस इतना कहूँगा. So please keep watching my videos and try to understand in the real time scenario examples. मैं आपको कोई कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा हूँ, बस सकता है कि रियल टाइम एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, राइट? सो चलो बाय गाइस, लेट्स मीट टुमारो फॉर द नेक्स्ट सेशन.